Hello students, welcome to lecture number 7 of the chapter Government, Budget and the Economy. This is the comprehensive lecture, stands for इस चैप्टर में हमने जो सब कुछ किया है उसका मैं ब्रीफ अप देने वाला हूँ आपको. What we have in this chapter, क्या कर चुके हैं और क्या है. Now listen carefully, everyone. In February, generally 1st February, the Finance Minister of India presents the budget in the Parliament House. Budget means estimated receipts and estimated expenditure, कि हम इतना खर्च करेंगे और हम इतना कमाएंगे. क्योंकि ये एस्टिमेशन होती है, इस वजह से इस पर काफ़ी डिस्कशंस होती हैं, पैनल्स होते हैं, स्पीचेस होते हैं. ऑपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी अपने एडवाइस देते हैं. उसके बाद डिस्कशंस के बाद एक एक पॉइंट को पढ़ने के बाद बजट को पास किया जाता है और कुछ चेंजेस अगर ज़रूरी हैं तो वो चेंजेस लगा दिए जाते हैं. और 1 अप्रैल जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल ऑफ करंट ईयर टिल 31 मार्च ऑफ द अपकमिंग ईयर, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर जो पूरा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसमें गवर्नमेंट कंट्री को कैसे चलाती है इसमें पहले से पता होता है. बजट में गवर्नमेंट हमें पहले ही बता देती है कि हमने कितना खर्चा और कितनी रिसीट्स कहाँ से और किस तरीके से करनी है. सो the components of budget. The first topic, components of budget. There are two components of budget. The first budget is the first component is budgetary receipts. It refers to all the estimated receipts for the government in the financial year from all the sources. हर जगह से जहाँ से पैसा आएगा एक साल में उसे budgetary receipts कहा जाता है. And the second component is budgetary expenditure. Budgetary expenditure refers to the estimated expenditure of the government on all the sources during the financial year, considering the budgetary receipts. एक साल में गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा आएगा. It has been divided into two parts. The first part is revenue receipts and the second part is capital receipts. Revenue receipts are the estimated receipts of the government which are recurring in nature, जो बार बार होती हैं, which neither increases liability nor reduces assets. And capital receipts are those receipts which are non-recurring in nature, which either increases liabilities or reduces assets of the government. Both the conditions should not be satisfied. Any one condition should be satisfied. These are non-recurring in nature, these are recurring in nature. Now revenue receipts के दो parts होते हैं. One is tax receipts, other is non-tax receipts. Tax receipts refers to the estimated budgetary revenue receipts. Tax is a compulsory payment
which is to be paid by household, person, entity or corporate company once it has been imposed. एक बार टैक्स लग गया तो पे करना पड़ेगा. There are two categories to discuss the taxation. The first category is direct and indirect tax. Direct tax refers to the tax which is to be paid by the same person on which it is imposed. The burden cannot be shifted to any other person. इंडिया में इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स है. इनकम टैक्स लोगों की इनकम पर लगता है. वेल्थ टैक्स इनहेरेंट होती है, जो हमारे पूर्वजों की संपत्ति हमें मिलती है उस पर पे होता है. गिफ्ट टैक्स जब आप कोई गिफ्ट किसी को देते हैं तो और वो गिफ्ट की कोई बड़ी अमाउंट होनी चाहिए तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है. एंड कॉरपोरेशन टैक्स कंपनीज के प्रॉफिट्स पे लगता है, कॉरपोरेट टैक्स. इनमें से गिफ्ट टैक्स पेपर टैक्स है. व्हाट इज पेपर टैक्स? जो सिर्फ बुक्स के अंदर होता है, बहुत ही कम अमाउंट पे होती है. एक साल में गवर्नमेंट गिफ्ट टैक्स बहुत ही कम रिसीव करती है. गिफ्ट टैक्स पर खर्चा ज़्यादा हो जाता है बट कमाई कम होती है. गिफ्ट टैक्स इकट्ठा करने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेपर टैक्स. Indirect tax refers to the tax, the burden of which can be shifted to other person. The burden cannot be shifted by the ultimate consumer. It can be partly transferred or wholly transferred to the consumer. इंडिया में indirect tax रिप्लेस हो गया, सारे indirect tax रिप्लेस हो गए GST में. एंड कुछ एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट अभी भी लगता है, बट वो कुछ ही गुड्स पर लगता है, कुछ पेट्रोलियम एंड यू कैन से अल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट्स पे. अदरवाइज जीएसटी इज वन ऑफ दैट कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स. टैक्स को दूसरी कैटेगरी में रखा जा सकता है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनेट टैक्स. प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है जब इनकम बढ़ेगी तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा. इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स फॉलो किया जाता है कॉर्पोरेट टैक्स में एंड इनकम टैक्स में. इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जो प्रोग्रेसिव इन नेचर है. आप ज़्यादा कमाएंगे तो आपको ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. इसका अल्टीमेट बर्डन रिचर सेक्शन पे रहता है. प्रोपोर्शनेट टैक्स का मतलब होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है. आप जितना मर्जी कमाएं आपको सेम टैक्स ही देना पड़ेगा. जैसे मैं आपको कमर्शियली पढ़ा रहा हूं तो मेरे पर जीएसटी लग रहा है 18% जो मैं आपसे चार्ज करूंगा. अब आप अफोर्ड करें या ना करें सब पर पे होगा. सो प्रोपोर्शनेट टैक्स रेफर्स टू अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट टैक्स रेफर्स टू अ टैक्स in which the rate remains same irrespective of increase or decrease in income. इसका रियल बर्डन पुअर सेक्शन पे होता है क्योंकि रिच सेक्शन तो ये अफोर्ड कर सकता है. इसी तरीके से एक और टैक्स होता है रिग्रेसिव टैक्स जो गरीबों पे ज्यादा लगाया जाता है. आप गरीब हैं तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा. रिग्रेसिव वेल it is a tax in which the rate of tax increases with a decrease in income और rate of tax decreases with the increase in income. मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि इंडिया में ये अब अप्लाई नहीं होता है. रिग्रेसिव टैक्सेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया. अब अगर हम नॉन टैक्स रिसीट्स की बात करें, लेट्स डिस्कस द नॉन टैक्स रिसीट्स. पैसे आ रहे हैं, रेकरिंग इन नेचर है, बार बार आते हैं, पर वो टैक्स नहीं है. इंडिया की रिसीट्स का, रेवेन्यू रिसीट्स का मेजर चंक टैक्स रिसीट्स में ही रहता है. नॉन टैक्स रिसीट्स में हमारे पास आती हैं फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, वीजा फीस, पासपोर्ट फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स, चलान, मास्क नहीं डाला हुआ है चलान, रेड लाइट जंप की चलान, पेनल्टीज सिमिलर टू दिस.
आप पर पेनल्टी लगाई जाती है। फाइन्स रूल्स के लिए होता है, पेनल्टीज पॉलिसीज के लिए होती हैं। जैसे कि रात को 12 बजे के बाद कर्फ्यू है तो आप कर्फ्यू में नहीं जा सकते, अगर आपने कर्फ्यू तोड़ा तो 10,000 लग जाएगी पेनल्टी। अगर रेड लाइट तोड़ी तो फाइन लगेगा, वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। सो फाइन्स पेनल्टीज इज वन और मोर और लेस सेम, गवर्नमेंट को इससे इनकम होती है। एस्टेट, किसी पर्सन की डेथ होती है, उसने विल नहीं लिखी और उसकी फर्स्ट फैमिली सेकंड फैमिली में कोई भी नहीं है, सेकंड कजन्स में भी कोई नहीं है। फर्स्ट फैमिली स्टैंड्स फॉर मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे। सेकंड फैमिली में आ जाते हैं चाचा, ताया, मासी, बुआ। और सेकंड कजन्स में आ जाते हैं उनके बेटे, उनके ब्रदर्स। नहीं है कोई भी फैमिली में, और उसने विल भी नहीं लिखी, उसके पैसों का क्या किया जाना चाहिए? तो गवर्नमेंट वो पैसे, वो एसेट्स को मोनेटाइज करके, लिक्विडेट करके इस अकाउंट के अंदर रखेगी। स्पेशल असेसमेंट, गवर्नमेंट के खर्चे के कारण आपकी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाता है, तो आपको जो कैपिटल गेन होता है, व्हाट इज कैपिटल गेन, अचानक से फायदा, उसका कुछ परसेंटेज आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट के खर्चे की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है। इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि रेलवेज, रेल टिकट, एयर इंडिया, पोस्ट ऑफिसेस, उनसे जो प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट्स, इनकम होती है, रेवेन्यू होता है, सेल्स होती है, एक्सेट्रा। सो द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इज अ नॉन टैक्स रिसीट। नाउ व्हाट आर कैपिटल रिसीट्स? इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। The first is borrowings. वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, IMF से लोन लिया, कनाडा गवर्नमेंट से लोन लिया। ये हमारी लायबिलिटी बढ़ाती है, कंट्री की लायबिलिटी बढ़ रही है। रिकवरी ऑफ लोन, इंडिया ने श्रीलंका को लोन दिया हुआ था, इंडिया के लिए एसेट था क्योंकि इनकम मिलती थी, ब्याज मिलता था उस पर। आज श्रीलंका ने लोन वापस कर दिया। इंडिया हैज गिवन एडवांस्ड लोन टू श्रीलंका 10 years बैक, नाउ दे हैव रिटर्न द मनी, एसेट कम हो गया। इंडिया को लगता है कि काफ़ी सारे एसेट्स ऐसे हैं जिनको चलाना मुश्किल है, जो लॉसेस में जा रहे हैं। से रेलवेज़ की कैटरिंग, रेलवेज़ में जो खाना मिलता है, रेलवेज़ की सर्विसेज, जो चादर होती है, बेडशीट सर्विसेज होती है, क्लीनिंग सर्विसेज होती हैं, गवर्नमेंट उसको डिसइन्वेस्ट कर देगा, प्राइवेटाइज कर देगा कि हम लोगों को बेच रहे हैं। तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉरपोरेट हाउसेज हैं, वो उस चीज़ को टेक ओवर कर लेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट, इससे कंट्री का एसेट कम होता है। मैं इस बोरोइंग्स की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, समझा दिया मैंने रब किया है, कुछ इसका रीज़न है, बताता हूँ क्यों, क्या रीज़न है। तो गवर्नमेंट बताएगी हमें कहाँ कहाँ से पैसे मिलते हैं, हमें कितने पैसे मिलने हैं एक साल में। फिर बात आएगी खर्चों की, हम कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। देयर आर 2 types ऑफ एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो ना ही लायबिलिटी को कम करता और ना ही एसेट को बढ़ाता। वो खर्चे जो रेकरिंग इन नेचर है, कंट्री को चलाने के लिए ज़रूरी है ऑपरेशनल सेंस में, पर उससे ना कंट्री की लायबिलिटी कम हो रही, ना एसेट बढ़ रहा।
एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का खर्चा, प्रेसिडेंट की सैलरी, स्कूल टीचर, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स की सैलरी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्लीनिंग का खर्चा, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डिफेंस का खर्चा, अब डिफेंस का खर्चा कैसे, आर्मी ऑफिशियल्स के सैलरी पे हो रही है, आर्मी ऑफिशियल्स के कपड़ों पे खर्चा हो रहा है, ये सब डिफेंस का खर्चा है, बट रेवेन्यू है, रेकरिंग इन नेचर है। द सेकेंड टाइप ऑफ बजटरी एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो या तो इधर लायबिलिटी को कम करता है या फिर एसेट को बढ़ाता है। लायबिलिटी को कम करना, इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था 10 साल पहले, आज वापस हो रहा है, लायबिलिटी कम। एसेट को बढ़ा रहे हैं, एसेट्स कौन से बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने न्यू रोड्स बनाई, देखिए नई रोड्स बनाई इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, पुरानी रोड्स की मेंटेनेंस हुई इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नए ब्रिजेस बने इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ब्रिज टूट गए ठीक किया इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफेंस का एग्जांपल लेते हैं, नए रॉकेट्स खरीदे, फ्रांस से रॉकेट्स मंगवाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रॉकेट्स को चलाने के जो पायलट्स हैं, कैप्टन्स हैं, उनको सैलरी दी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप यू आर गेटिंग द डिफरेंस। टैंकर्स खरीदे, कैपिटल। स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर्स लिए नए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंप्यूटर्स चलाने के लिए जो टीचर्स हैं उनको सैलरी दी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हॉस्पिटल में मशीन्स खरीदी, कैपिटल। डॉक्टर्स को, नर्सेस को सैलरी दी, रेवेन्यू। वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, इस कैपिटल रिसीट, लायबिलिटी बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक को लोन वापस किया, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर, लायबिलिटी कम हो रही है। वर्ल्ड बैंक ने हमें पैसे दिए बट हमने कभी वापस नहीं करने, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, नॉन टैक्स रिसीट्स। वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए पर वापस नहीं करने, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। कोई पॉजिटिव रीजन से दिए हैं तो गिफ्ट्स, जैसे इंडिया की इंडिपेंडेंस को 80 इयर्स हो गए तो गिफ्ट्स। इंडिया में अर्थक्वेक आ गया तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ पैसे दे दिए, ग्रांट्स। वर्ल्ड बैंक ने लोन लिया और कहा 10 साल में वापस करो, कैपिटल रिसीट। वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया और हमने आज वापस कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर को और भी कैटेगरीज में डिस्कस किया जा सकता है, लाइक बजटरी एक्सपेंडिचर को हम और डिस्कस कर सकते हैं, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो कंट्री की ग्रोथ में काम करता है, हेल्प करता है। एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो कंट्री की ग्रोथ में हेल्प नहीं करता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि डेवलपमेंटल वो खर्चा है जो कैपिटल है और नॉन डेवलपमेंटल वो है जो रेवेन्यू है, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको डेवलपमेंटल के 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, एक रेवेन्यू, एक कैपिटल। Developmental expenditure are those estimated expenditure of the government in a one financial year that helps in the growth process of the country. Example number 1. Salary expenditure. Salary paid to the police officers or salary paid to the subsidies given to the doctors pursuing PhD. Doctors जो PhD pursue कर रहे हैं उनको सब्सिडीज दी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट डेवलपमेंटल इन नेचर। इससे कंट्री की डेवलपमेंट होगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी। डेवलपमेंटल विच इज कैपिटल इन नेचर, न्यू रोड्स बनाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल इन नेचर। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इन नेचर। एग्जाम्पल, इंडिया की गवर्नमेंट ने
सैलरी पे की सिक्योरिटी, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी पे, इट्स अ नॉन डेवलपमेंटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, फ्रांस से हमने टैंकर्स खरीदे, इट्स अ नॉन डेवलपमेंटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जो फ्रांस से हमने टैंकर खरीदे, एसेट तो बढ़ गया, बट कंट्री की डेवलपमेंटल में इससे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ठीक है, डिफेंस होगा, बट अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान हमसे काफ़ी आगे होता। पाकिस्तान में डेवलपमेंटल कम है पर डिफेंस पे खर्चा ज़्यादा है। और इसको हम ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं, प्लान एंड नॉन प्लान या अनप्लान। गवर्नमेंट कहेगी हम इतना खर्चा प्लान कर रहे हैं और इतना खर्चा रिजर्व्स एंड कंटीजेंसीज में रख रहे हैं, कंटीजेंट्स में रख रहे हैं। हमें नहीं पता, क्या पता पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, अचानक से कहीं पर फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो उसके लिए भी तो कुछ पैसे रखने पड़ेंगे। एंड प्लान इज दे नो वेयर टू अप्लाई, अनप्लान नॉन प्लान इज व्हाट दे डोंट नो वेयर टू अप्लाई। क्लियर? दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ बजट। I hope you are clear with this. Giving you 1 minute, note down करने तो कर लीजिए, if you want to you may। इसके बाद सेकेंड हाफ, बजट के सेकेंड हाफ पे जाएंगे। Now moving on, types of budget। बजट की दो टाइप्स। बजट दो बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है समझने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे बजट को डिवाइड किया जा सकता है। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ बजट, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। What is revenue budget? Revenue budget refers to the estimated revenue receipts and revenue expenditure of the government in one financial year। इसके अंदर क्या आते हैं? Revenue receipts and revenue expenditure। Similarly, what is capital budget? Capital budget refers to the estimated capital receipts and capital expenditure of the government। Capital receipts and capital expenditure। इससे एसेट लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता, इससे एसेट लायबिलिटी पे फर्क पड़ता है। ये रेकरिंग इन नेचर है, ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्वालिटी, बजट को दो और कैटेगरीज में पढ़ा जा सकता है। बजट इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम में नहीं है, बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बजट। वन इज बैलेंस्ड बजट, अदर इज unbalanced budget। What is balanced budget? Balanced budget वो होता है जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट्स के इक्वल होती है। मतलब
इन सबको प्लस करके आ रहा है 1 लाख करोड़ और इन सबको प्लस करके आ रहा है 1 लाख करोड़, दोनों सेम है, बैलेंस्ड बजट। कंट्री को ना तो लोन लेने की जरूरत है ना लोन देने की जरूरत है। एंड अनबैलेंस्ड बजट वो होता है जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट्स के इक्वल नहीं होती। मींस गवर्नमेंट ने आपसे 10 लाख रुपए लिए, 1 करोड़ लिया टैक्सेस में, और आप पर 1 करोड़ लगा दिया, 1 करोड़ लिया 1 करोड़ लगा दिया। इस बैलेंस बजट आपसे 1 करोड़ लिया बट आप पर लगाया 1 करोड़ नहीं, इट्स अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट दो तरह का होता है, डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट। डेफिसिट बजट का मतलब क्या है? मैंने आपसे 100 करोड़ लिया पर आप पे 110 करोड़ लगाया, मैं गवर्नमेंट हूं, आपसे लिया 100 करोड़, आप पे लगाया 110 करोड़। रिसीट्स आर लेस देन एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट्स आर लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर, इट्स अ डेफिसिट बजट। आप पर मैंने लगाया, आपसे लिया 100 करोड़, आप पे लगाया 90 करोड़, आपसे लिया 100 करोड़, आप पे लगाया 90 करोड़, टैक्स इकट्ठे किए 100 करोड़, आप पर लगा दिया 90 करोड़। दैट मीन्स टोटल रिसीट्स आर ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर। बैलेंस बजट मनी फ्लो को सेम रखता है, मनी फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। आपसे जितने पैसे लिए उतने पैसे आप पर लगा दिए। बैलेंस बजट कोई अचीवमेंट नहीं है कंट्री की कि अच्छा जी आपसे 100 करोड़ लिया, आप पे 100 करोड़ लगा दिया तो हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। क्या पता आपसे 100 करोड़ लेके हमने नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर किया, इट्स नॉट एन अचीवमेंट। उसी तरीके से अनबैलेंस बजट कोई फेलियर नहीं है गवर्नमेंट की, ये वेल प्लान स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। जानबूझ के गवर्नमेंट सरप्लस बजट लेके आए, डेफिसिट बजट लेके आए। सरप्लस बजट से क्या होगा? आपसे 100 करोड़ लिए, आप पे 90 करोड़ लगाए, मनी का फ्लो कम हो जाएगा, मनी फ्लो विल डिक्रीज इन द इकोनॉमी। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन हो तो ये बजट बेटर रहता है, महंगाई है तो ये बजट बेटर रहेगा। डेफिसिट बजट कोई फेलियर नहीं है कंट्री की, हो सकता है वेल प्लान स्ट्रैटेजी हो ताकि मनी का फ्लो बढ़ाना चाहे कंट्री। मनी फ्लो विल इंक्रीज। आपसे लिए 100 करोड़, आप पे लगा दिए 110 करोड़, इन सबका टोटल क्या आ रहा है? 100 करोड़, और इस सबका टोटल आ रहा है 110 करोड़। इन सबका टोटल 100 करोड़ और इन सबका टोटल 110 करोड़। तो ये 10 करोड़ कहां से पूरे करेंगे? ये 10 करोड़ पूरे करेंगे यहां से लोन लेके। तो बाद में बताया जाता है कि हम कितना लोन लेंगे, इसीलिए मैंने रब कर दिया था। पहले इन सबका टोटल किया जाता है से 100 करोड़, इन सबका टोटल किया 120 करोड़, इन सबका टोटल 100 करोड़, इन सबका टोटल 120 करोड़। तो एक महीना पूरी डिस्कशन चली कि भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा कम कर दिया, सिगरेट पे टैक्स बढ़ा दिया, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, ये चल चला के रिसीट्स बन गई 100 से 110, रिसीट्स बन गई 100 से 110, और एक्सपेंडिचर हो गए 120 से 115, एक्सपेंडिचर हो गए 115, रिसीट्स हो गई 110। 5 करोड़ की अभी भी शॉर्टेज है। डेफिसिट बजट कैसे पूरा करेंगे? बोरोइंग से, लोन लेके। सो डेफिसिट बजट आ गई 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 रादर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। डेफिसिट बजट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट। What is revenue deficit? When revenue expenditure is greater than revenue receipts.
मतलब रेवेन्यू बजट डेफिसिट में है। रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स। व्हाट डज दैट मीन? कंट्री लॉसेस में जा रही है, क्या ये गलत है? आई विल से यस, गलत है, बट अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं तो चलेगा, क्योंकि फ्यूचर में जाके प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो इट कैन बी कंसिडर्ड ओके, बट एट सम लिमिट। ये सही है, बट कम होना चाहिए, हर साल लगातार बार बार नहीं होना चाहिए। और अगर है हर साल लगातार बार बार, कम है तब भी चलेगा, बट अगर ज्यादा है तो डेवलपमेंटल होना चाहिए। अदर इज फिस्कल डेफिसिट। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? All the receipts except borrowings and all the expenditure. All the receipts except borrowings and all the expenditure. तो वो borrowings ही आएंगे इक्वल करने के लिए, जैसे बताया था। टोटल रिसीट्स कितनी आ गई? 110। टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 115 से। तो 5 करोड़ की शॉर्टेज है, कैसे पूरी करेंगे? लोन लेके। सो फिस्कल डेफिसिट इज एक्चुअली total expenditure greater than total receipts, but total receipts are non-debt। non-debt मतलब borrowings छोड़ के। क्यों? क्योंकि fiscal deficit actually borrowings के इक्वल ही आता है। fiscal deficit borrowings के इक्वल ही आता है। सो अगर हम यहां से बोरोइंग्स हम बोरो कर रहे हैं, कितना बोरो कर रहे हैं? 5 करोड़। उस 5 करोड़ में 1 करोड़ का ब्याज है, तो हम कितना बोरो कर रहे हैं ब्याज के अलावा? इज प्राइमरी डेफिसिट। सो यस, देयर इज थर्ड मोर। इसको मैं इस तरीके से मेंशन करता हूं, बोरोइंग्स इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। हम कितना लोन ले रहे हैं इंटरेस्ट के साथ? अब हमने लोन लिया, कितना लोन लिया? जैसे प्लस माइनस करके मैंने आपको बताया था 5 करोड़। 5 करोड़ की बोरोइंग्स होगी, इसमें ब्याज इंक्लूडेड है। कौन सा ब्याज? पुरानी बोरोइंग्स का, क्योंकि ये तो अभी बोरो किया, इसका ब्याज तो अगले साल से शुरू होगा। ये हमारी तरह नहीं होता, वर्कआउट नहीं होता कि भाई आज लोन लिया अगले महीने से ही ब्याज देना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर्स जब रेवेन्यू अर्न होना शुरू हो जाता है तब वापस होता है। सो हमने कितना लोन लिया? 5 करोड़। 5 करोड़ में 1 करोड़ का इंटरेस्ट है जो पिछले साल का है। सो बोरोइंग्स inclusive of interest on past borrowings, पुरानी borrowings का interest is fiscal deficit, and borrowings exclusive of interest is primary deficit। तो कितना लोन लिया हमने? 5 करोड़। उसमें इंटरेस्ट है 1 करोड़, तो कितना लोन लिया ब्याज के अलावा? 4 करोड़। सो फिस्कल डेफिसिट इज 5 करोड़ एंड प्राइमरी डेफिसिट इज 4 करोड़। बट इकोनॉमिक्स में जब हम बोरोइंग्स कहते हैं तो हम इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। सो जब भी मैं बोरोइंग्स कहूंगा, जब भी ये बुक में बोरोइंग्स पढ़ेंगे, वो फिस्कल डेफिसिट के इक्वल होती है। अनबैलेंस बजट को खत्म करने के लिए, डेफिसिट बजट को खत्म करने के लिए नए नोट भी छापे जाते हैं, जिसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। न्यू नोट्स प्रिंट कर दो, डेफिसिट फाइनेंसिंग। बट इंडिया में ये बहुत ही सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोडक्शन इक्विवेलेंट लानी मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं होती इंडिया में, अनलेस अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो। डेफिसिट फाइनेंसिंग लोन लिया जाता है ताकि वापस कर दे प्रोडक्शन के बाद। यूएसए में डेफिसिट फाइनेंसिंग फॉलो की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमी। डेफिसिट बजट नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज बनाती हैं, अंडर डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि वो मनी फ्लो को बढ़ाती हैं ताकि थोड़ी थोड़ी करके प्रोडक्शन बढ़े। और डेवलप्ड कंट्रीज बैलेंस्ड बजट बनाती हैं। सरप्लस बजट
एक टेम्परेरी मेजर बनाया जाता है जब कंट्री में इन्फ्लेशन हो उसको खत्म करने के लिए। सर रेवेन्यू डेफिसिट एक वार्निंग शो करती है, बट फिस्कल डेफिसिट एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हर साल बोरोइंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उससे मनी का फ्लो इतना बढ़ जाएगा और मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगी, क्योंकि इससे मनी का फ्लो बढ़ता है। अगर इक्वल प्रोडक्शन ना हो, हम लोन लेके अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे लग रहे हैं, तो 10 साल बाद जब वापस कर रहे हैं तो कैसे वापस करेंगे? क्योंकि अगर इनकम नहीं होगी तो गवर्नमेंट को टैक्स कैसे पे होगा, लोग पैसे नहीं कमाएंगे तो टैक्स कैसे देंगे? तो फिस्कल डेफिसिट एक अच्छी चीज़ है अगर लिमिट में हो और उसके इक्वलेंट प्रोडक्शन हो, डेवलपमेंट हो। बट अगर फिस्कल डेफिसिट लगातार हर साल बढ़ रहा है, कुछ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हर साल बढ़ी जा रही है, तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द कंट्री। और प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो आ जाए, इट मीन्स फिस्कल डिसिप्लिन। दैट मीन्स हम लोन ले रहे हैं पुराना ब्याज देने के लिए, पुराना ब्याज रहता है बस। मीन्स इफ प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो, इट मीन्स हम लोन ले रहे हैं पुराना इंटरेस्ट देने के लिए। हमें इस साल नए लोन की ज़रूरत नहीं है, हम इतने कैपेबल हो गए हैं कि अपने सारे खर्चे पूरे कर लें। बस पुराने कुछ लोन पड़े हैं जो वापस करने हैं, पुराना कुछ इंटरेस्ट है जो वापस करना है। प्रिंसिपल अमाउंट पे हो चुकी है, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट है जो पेंडिंग है, उसके लिए हम लोन ले रहे हैं। इट मीन्स वी आर फिजिकल डिसिप्लिन्ड। अगर बजट ये फॉर्मूला लगा के नेगेटिव आ जाए तो वो डेफिसिट बजट नहीं है, सरप्लस बजट हो जाता है, और जीरो आ जाए तो वो बैलेंस बजट हो जाता है। गिविंग यू 1 मिनट, आप ये नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें। द टाइप्स ऑफ बजट ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम और इक्वालिटी, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड। स्पीड अप। इसके बाद 2 मिनट लगा के हम लास्ट टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। Speed up 30 more seconds. ओके, नाउ बजट क्यों बनाया जाता है, क्या ज़रूरत है बजट बनाने की, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किस बेसिस पर बजट बनाया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। काफ़ी सारे बजट्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि कंट्री में स्टेबिलिटी बनी रहे, स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी, मतलब ना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, ना ही अनएम्प्लॉयमेंट हो, ना ही इन्फ्लेशन हो, ना ही डिफ्लेशन हो, ना ही रिसेशन हो, मनी फ्लो रियल फ्लो के इक्वल आए, इसके लिए बजट बनाया जाता है। हमने पढ़े थे मॉनेटरी मेजर एंड फिस्कल मेजर। मॉनेटरी मेजर आरबीआई करता है, दिस इज फिस्कल मेजर, बजटरी पॉलिसी, मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, मनी के फ्लो को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए, सेम रखने के लिए। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो ज़्यादा अमीर हो रहे हैं उनको रोकना है और जो गरीब हैं उनको सब्सिडीज देनी है। तो किस तरीके से लगाया जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा के, सुपर रिच टैक्स लगा दो, ताकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री में खत्म हो पाए। नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। जिसे हम कह सकते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस या रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस।
इसका मतलब है जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर नीचे जा रहा है और सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो सर्विस सेक्टर में हम कुछ इस तरीके से टैरिफ्स लगा देंगे कि सर्विस सेक्टर में एंटर करना टफ हो जाए। और एग्रीकल्चर सेक्टर, अब ये नहीं कि सर्विस सेक्टर में कोई जा ही नहीं सकते, वी आर इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, डेमोक्रेटिक कंट्री, वी कैन, बट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री, गवर्नमेंट चाहती है प्लास्टिक इंडस्ट्री में इतना प्रॉफिट हो रहा है बट इन्वायरमेंट खराब हो रही है, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री में एंटर करना, लाइसेंस लेना या लोन लेना टफ कर दे, और वही पैसा या टैक्स बढ़ा दे, वही पैसा सब्सिडी दे दे एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स को, तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर दिया जाएगा, एलोकेट कर दिया जाएगा, कंपोजिशन सही हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसको कंट्रोल तो किया नहीं जा सकता बट उनको काम देना तो ज़रूरी है, और टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। तो बजट इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले। स्किल इंडिया मिशन इज़ वन ऑफ दैट एग्जाम्पल। मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, व्हाट डज दैट मीन? एयर इंडिया पोस्टेज पर कितना खर्चा हो रहा है, कितनी रिसीट हो रही है, तो उसे प्रॉफिट पे कैसे लाया जाएगा? एयर इंडिया लॉसेज में जा रहा है तो उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एटसेट्रा। These are the objectives of the budget. This is the comprehensive lecture of the chapter Government Budget and the Economy, and we are done with this chapter. Keep studying, keep growing. Bye bye, take care. God bless.